Hello dear student, welcome back to your online classes. This is Salma Khatun standing in front of you, and today we are going to start our continued chapter, that is chemical reactions. And in the previous lecture we have completed, I think most of the part we have completed of the chapter chemical reaction, that what is chemical reaction and what are the reactants, what are the products, how the chemical changes occurs. Okay, everything we have discussed. Now today we will discuss the next part, that what are the different types of chemical reactions. What are the different types of chemical reaction? And here it is. First one is your direct combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement or decomposition reaction. Easiest, one of the easiest reaction to identify that what type of reaction is occurring, and it is the simple reaction. And most of the chemical reaction, direct combination reaction, I think in 90% reaction डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होती है. ठीक है. एक्चुअली इन ईच एंड एवरी रिएक्शन हम लोग केमिकल रिएक्शन में क्या बना, what we have studied till so far कि केमिकल रिएक्शन है क्या, if two reactant combine, दो reactant है कोई भी केमिकल, ठीक है, कोई भी केमिकल है, when two reactant combine and they form a new substance, that is called as chemical reaction. ठीक है, उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं. एंड द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द सेम थिंग. ओके, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी यही हो रहा है कि दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स या एक एलिमेंट एक कंपाउंड कंबाइन करेंगे एंड दे विल फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस. ओके, नाउ जस्ट टेक एन एग्जांपल. डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन in which two elements combine, two reactants combine to form a new substance. That's why this type of reaction is called as synthesis reaction. This reaction is also called as synthesis reaction. Synthesis reaction. Okay. Now, example देख लेते हैं. Carbon plus oxygen. When carbon and oxygen combine, they will give a compound. That new substance is called as, new substance is our compound. Carbon is in gaseous state and oxygen is also in gaseous state. Carbon G represent the gaseous condition of the element. ठीक है, so this one is also in gaseous condition and oxygen is already, we know that it is gas, and CO2 they form another compound, a new compound, that is your product. यही product बन रहा है. तो both are क्या है, ये कार्बन क्या है and what is oxygen, they both are element. Now तो हमने कहा था कि अगर एक एलिमेंट दो दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है. इन द सेम वे एक और अभी डेफिनेशन दिया था कि when element combine with a compound, then also they will form a new product, a new substance. देखो यहाँ पे ऑक्सीजन इज आवर एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट है. और एलिमेंट क्लियर है आप लोगों को बेटा, क्लियर है आप लोगों को कि एलिमेंट क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एटम. ये सारे डिफरेंस आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. समझ में नहीं आएगा डिफरेंस, अगर डिफरेंस पता नहीं है देन यू विल फेस प्रॉब्लम. कि एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी एटम. किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एटम का प्योरेस्ट फॉर्म है, दैट इज योर एलिमेंट. ठीक है, एलिमेंट. इफ आई एम सेइंग ऑक्सीजन, if I am saying oxygen, then it means in oxygen we have only the particles of oxygen is present, that is called as element. Okay, so oxygen यहाँ पर element है, oxygen मिले हुए, then it is
called as element. And here you can see carbon and oxygen both are present. And carbon and oxygen, if they are present, they are compound. यही तो compound है. तो compound और element का combination हो रहा है. That also they are giving a new compound, that is your CO2, carbon dioxide gas. Okay, carbon dioxide gas. Now next, this one is also compound. CO2 is a compound, and H2O is itself another compound, water, or they are giving H2CO3. What is H2CO3? कभी सुना है अब तक? H2CO3 क्या है? H2CO3 is your carbonic acid. Carbonic acid. And so carbonic acid क्या है? Idea है. Actually carbonic acid is an weak acid. ये एक weak acid है, ठीक है? Which is also produced in our bodies itself, which is also produced in our stomach. ये स्टोमक में बन रहा है. ड्यू टू द इवॉल्वमेंट, बॉडी में वाटर है, combination of CO2 and H2O, it form carbonic acid in our stomach. Or carbonic acid is found in each and every cold drinks, soft drinks, or I can say aerated drinks. जितने भी ये soft drink, cold drinks आते हैं, सब में carbonic acid present. Through which I can connect myself, जिससे हमने अपने आप को कनेक्ट किया है कि ये तो इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि मेरे आसपास, मेरी बॉडी में, मेरे जितने भी इंडस्ट्रियल जो सामान मैं यूज करती हूँ, इन ईच एंड एवरी थिंग द केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व. दैट्स व्हाई I just love this subject. Okay, now come to the carbonic acid. Carbonic acid is present in every cold drinks, in every soft drink, और जो tangentitis गले में लगता है only because of the presence of carbonic acid. Okay, तो क्लियर हुआ कि यहाँ पे अब SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड. ओके, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड को जब हम डिसोल्यूट करते हैं वाटर में, then it forms sulfuric acid. Sulfuric acid बहुत ज़्यादा strong acid है because it gives 2H plus ion, that's why it is very strong acid. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में जैसे मिक्स करेंगे, डिसोल्यूट करेंगे, then we will get a sulfuric acid, and all these reactions are the example of the direct combination reaction और synthesis reaction. क्योंकि प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ठीक है. अगर हमें H2SO4 चाहिए होगा, then we will mix these two reactants. If we need carbonic acid, then obviously we will need these two reactants. Okay, now come to the next. I think I have made myself clear कि ये reactions क्या है. Now come to the next reaction, that is our decomposition reaction. Decomposition reaction, the name itself suggesting its meaning. That decomposition means decompose, to decompose. Decomposition reaction is that type of reaction in which the compounds are decomposing, or the compounds are splitting or breaking into its element. जैसे किसी भी चीज को ब्रेक
ब्रेक करते हैं तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी देती है, खुद से कोई चीज टूटता नहीं है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो बेटा समझाने के लिए कि अगर एक बड़ा सा पत्थर है, हमें कुछ यूज करना है, उसको यूज करना है, तो इतने बड़े बड़े से अगर हमें यूज नहीं करना है तो डेफिनेटली वी विल ट्राई टू ब्रेक इट, ठीक है, उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, और उसको जब ब्रेक करेंगे देन वी विल गेट टू स्मॉलर पीसेस ऑफ दैट रॉक, ठीक है, उसके छोटे छोटे पीसेस मिल जाएंगे, अब हम उसको यूज कर सकते हैं। इन द सेम वे, तो उसको जब ब्रेक कराएंगे तो ब्रेक कराने के लिए वी हैव टू अप्लाई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसमें एनर्जी देंगे, उसको किसी भी तरीके से तोड़ने की कोशिश करेंगे, और ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ दैट कंपाउंड, so in decomposition reaction we just apply some amount of energy, and after the getting energy they just split, okay, ठीक है। now come to our example, suppose we have mercuric oxide, ठीक है, this one is your mercuric oxide, and mercuric oxide when get some amount of energy, mercuric oxide when get some amount of energy, it will decompose or split into their elements, अपने वो एलिमेंट्स में वो ब्रेक कर जाएगा, दैट इज आवर मरकरी एंड ऑक्सीजन, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना है, बट व्हेन दे गेट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी इसको मिली, एंड आफ्टर दे गेटिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी ये कन्वर्ट हो गया किसके, अपने एलिमेंट, अपने ओरिजिनल पोजीशन में चला गया, मरकरी एंड ऑक्सीजन एलिमेंटल पोजीशन में चला गया, एलिमेंटल कंडीशन में चला गया, ठीक है। तो दिस इज योर ओवरऑल रिएक्शन, तो ये क्या हो गया, हीट, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट बेटा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं कि ये ट्रायंगल में हमने मैथ्स में चली गई क्या, नहीं, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हीट प्रोवाइड किए, इट विल कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में रिलीज कर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इट विल रिलीज इन द फॉर्म ऑफ गैस, और गैस का सिंबल ये भी है, वी कैन राइट G आल्सो, और ये भी लिख सकते हैं। रिएक्टेंट के फॉर्म में मेनली हम लोग G यूज करते हैं, बट प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग ये सिंबल यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गैस के फॉर्म में है तो वो इवॉल्व होकर निकल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा। नाउ दिस वन इज योर अमोनियम डाइक्रोमेट, ये ऑरेंज कलर का कंपाउंड है, ठीक है, इट इज योर ऑरेंज कंपाउंड, अमोनियम डाइक्रोमेट, उसको भी अगर हीट करेंगे देन वी गेट अ ग्रीन कलर कंपाउंड, दैट इज योर क्रोमेट, डाइक्रोमेट, यहां दिस वन इज योर अमोनियम डाइक्रोमेट, एंड अब इसको ब्रेक किया गया तो Cr2O3 डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो गया वाटर में, और नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बट डिकम्पोज होना मतलब कि कहीं ना कहीं उसको एनर्जी चाहिए, somewhere it is needed energy, और एनर्जी, क्योंकि हमें कंपाउंड को क्या करना है, ब्रेक करना है। देखो बेटा किसी भी चीज को तोड़ने के लिए डेफिनेटली वो कोई चीज खुद ब खुद से वो टूटना नहीं चाहिए, जब तक कि हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें, उसमें एक्सटर्नल एनर्जी ना लगाएं, और वो एक्सटर्नल एनर्जी बाहर से आएगी, आइदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, in the form of electricity, in the form of light, in the form of catalyst, मतलब कहीं ना कहीं, या प्रेशर, ये इस फॉर्म में हम एनर्जी देंगे और तभी वो ब्रेक करेगा। सो ऑन द डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी वी हैव मेनली 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, किस सोर्स से वो टूट रहा है, उस सोर्स के बेसिस पे वी हैव 3 टाइप्स ऑफ decomposition reaction, thermal dissociation, first one is thermal dissociation, second one is electrolytic decomposition, and third one is photolytic decomposition। यहाँ पे जगह नहीं था, that's why I didn't written here, लिख देते, लेकिन अभी we have रब करना होगा, that's why अभी बता रहे हैं, ठीक है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। थर्मल डिसोसिएशन, अच्छा देखो यहाँ पे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखा है, why I have written thermal dissociation, and here I have written thermal decomposition reaction. Here I have written thermal decomposition reaction, and here I have electrolytic decomposition reaction, and here I have written thermal dissociation reaction. Actually इन दोनों रिएक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। थर्मल
Dissociation means the reaction, the decomposition reaction which can be reversed. वो reaction, वो decomposition reaction, ठीक है, होगी तो, क्योंकि हम तो decomposition reaction कर रहे हैं, because we are studying the decomposition reaction. और उस decomposition reaction में अगर reaction reverse हो जाती है, because देखो ये forward reactions के symbol है, ठीक है, these are the symbol of forward reaction. और एक रिएक्शन होती है, एक सिंपल होती है बैकवर्ड रिएक्शन. अगर रिएक्शन इधर जा रही है तो फॉरवर्ड, और इफ इट इज कमिंग बैकवर्ड तो वो हो जाती है बैकवर्ड रिएक्शन. ठीक है, तो मोस्टली जितने भी रिएक्शंस होती हैं वो फॉरवर्ड रिएक्शन ही होती है. ठीक है, बट समटाइम इट इज ड्यू टू सम एक्सेप्शन, बट ड्यू टू सम रीजंस द रिएक्शन इज गेटिंग बैकवर्ड डायरेक्शन, वो पीछे की तरफ आ रहा है. That's why the reaction is called as backward reaction. But in thermal dissociation, decomposition reaction, where the decomposition reaction can be reversed along with the forward direction. वो फॉरवर्ड के साथ साथ पीछे भी चला आएगा. तो इस तरीके के रिएक्शंस को हम लोग कहेंगे डिसोसिएशन रिएक्शन. क्यों? क्योंकि वो टूट भी रहा है और ज्वाइन भी हो रहा है. पूरी ऐसा नहीं कि डिकम्पोज होकर वो खत्म हो गया. ठीक है, डिकम्पोज होकर वो अपनी आइडेंटिटी खो दिया, नहीं, डिकम्पोज हुआ, बट इफ it is getting the appropriate condition again, if that element get the another opportunity to come back. So a reversible decomposition reaction is called as dissociation reaction. ठीक है, क्लियर. अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है डिकम्पोजिशन का, डिसोसिएशन मीन्स वो ब्रेक हो रहा है, वो ब्रेक तो हो रहा है, बट इफ it is getting an opportunity to come back in its original position, then it will come. So this type of reaction is called as dissociation. That's why I have written that's why it is called as thermal dissociation reaction, not decomposition. Decompose होकर वो back नहीं आएगा. ठीक है, और डिसोसिएशन है तो वो बैक होके चलाएगा. एंड दैट्स व्हाई द सिंबल इज लाइक दिस. दिस इज द सिंबल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन. ये हो गया बैकवर्ड रिएक्शन एंड दिस वन इज द फॉरवर्ड रिएक्शन. और जहां पे फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों हो रहा है, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन. कीप इट इन योर माइंड. ठीक है, नाउ अमोनियम क्लोराइड, दिस कंपाउंड वी हैव अमोनियम क्लोराइड. और अमोनियम क्लोराइड को जैसे ही हम हीट करेंगे, एज वी गिव सम अमाउंट ऑफ हीट, it will convert into the gaseous molecule, that is your ammonia and hydrogen chloride. ठीक है, और जैसे ये ठंडा होगा, when it will cool, ठीक है, जैसे ही वो ठंडा होगा, again it will, both the reactant will combine and they form ammonium chloride again. That's why it is called as dissociation reaction. That is the main difference between the dissociation and decomposition. Decompose तो हो रहा, but again it will come back in its original position, original condition. That's why it is called as dissociation. Again, nitrogen, dinitrogen oxide. Now, it is thermal dissociation when N2O4 heated at the temperature of 140 degrees Celsius, it is converted into the nitrogen dioxide, and again when it is cool, again it will convert it into its original condition, original element compound, that is your N2O4. Okay, now come to the second one, second type of decomposition reaction, that is your electrolytic decomposition reaction. It is that type of reaction in which a compound is decomposed by electric current. This type of reaction is called as electrolytic decomposition reaction. Now, बहुत सिंपल एग्जांपल है. इफ वी हैव वाटर, ठीक है, और ये वाटर कैसा होगा, डायरेक्ट सिंपल वाटर नहीं, वी विल यूज एसिडिफाइड वाटर. एसिडिफाइड वाटर मीन्स वी जस्ट ऐड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें एसिड मिक्स कर देंगे. एसिडिफाइड वाटर, it must be acidified water. ठीक है, and in acidified water when we pass the electricity,
pass the electric current, then it will convert it into the hydrogen gas and oxygen gas. Both are in gaseous condition. दोनों गैस के फॉर्म में वो रिलीज हो जाएगा. ठीक है. Electrolyte. This is your an example of. Another example of electrolytic decomposition is our NaCl. In NaCl, when we pass electricity, then it will convert into its element, that is our sodium and chlorine. और सोडियम क्लोराइड पता ही है, ऑलरेडी यू नो कि सोडियम क्लोराइड क्या है. सोडियम क्लोराइड इज आवर नॉर्मल सॉल्ट दैट इज प्रेजेंट इन आवर हाउसेस. ठीक है, अपने घरों पे है जो, बट क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या हमें सोडियम मिल जाएगा? इज इट पॉसिबल? नहीं. एक्चुअली वी नीड मोल्टन सोडियम क्लोराइड, और इतनी एनर्जी देंगे कि वो मेल्ट कर जाएगा. एक नॉर्मल सोडियम क्लोराइड जो सॉलिड की कंडीशन में है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में है सोडियम क्लोराइड का, वो उसको क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर देंगे, उसको मेल्ट करा देंगे. मोल्टन कंडीशन, मोल्टन सोडियम क्लोराइड. देन when we pass the electricity, it will convert into its element, that is Na and Cl. Okay, now यहाँ तक क्लियर है. ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर. नेक्स्ट, that is photochemical decomposition. Photochemical decomposition. In photochemical decomposition, the compounds are decomposed by the source of light. By the source of light, because जो photochemical decomposition है जो word, it comes from the photons and photon means light. ठीक है, तो light की वजह से जो compound decompose कर जा रहा है, जो break कर जा रहा है, ठीक है, लाइट की वजह से जो कंपाउंड डिकम्पोज कर जा रहा है, that type of chemical reaction is called as photochemical decomposition. Now come to the example, that is your AgCl, silver chloride. ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, it is in the form of precipitate, और precipitate का सिंबल ये भी है. ठीक है, either you just write PPT, ठीक है, short form PPT precipitate, or you can use this symbol. ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है precipitate को, and HNU रिप्रेजेंट द लाइट. ठीक है, हम यहाँ पे लाइट दे रहे हैं, मतलब कि अगर सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन है, ठीक है, इफ वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, टेस्ट ट्यूब में हमने लेके रखा है. ठीक है, और सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट में लेके जाते हैं, सनलाइट में सिल्वर क्लोराइड को लेके जा रहे हैं, आफ्टर सम टाइम वी जस्ट गेट क्लोरीन विच इज सिल्वर इन कलर. सॉरी, वी गेट सिल्वर Ag हमें मिल जाएगा, वो सिल्वर कलर का, और दिस AgCl इज इन व्हाइट कलर. व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट को अगर हम धूप में थोड़ी देर के लिए रख देंगे, वी गेट अ सिल्वर, एंड क्लोरीन जो है वो गैस बन के इवॉल्व हो जाएगी. क्लोरीन इज योर गैस. ठीक है, गैसेस मॉलिक्यूल. नाउ कम टू द हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एक कंपाउंड है हम लोगों का. ठीक है, जैसे ही हम उसको सनलाइट में लेके जाएंगे, उसमें क्या हो जाएगा, सारे के सारे O2 निकल जाएंगे, और ओनली वी गेट अ वाटर मॉलिक्यूल, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल रह जाएगा. दैट्स व्हाई दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर स्टोर्ड इन ब्लैक. That's why this type of compound is stored in the dark black और dark brown color jars में. शीशे के जो हम लोग के लैब्स में आते हैं, या मोस्टली ये सब कंपाउंड अपने घर में तो मिलेंगे नहीं. ठीक है, लैब्स में ही मिलेंगे. तो नॉर्मल जितने लैब्स में जो कंपाउंड होते हैं या सॉल्ट के फॉर्म में, तो ये सॉल्यूशंस होता है, वो हम लोग के व्हाइट कलर के शीशे के बॉटल में होता है, मेनली व्हाइट कलर के वो शीशे की बॉटल में. ठीक है, बट ग्लास की बॉटल में रहेगा. बट दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स, AgCl, सिल्वर नाइट्रेट, H2O2, AgCl, ये सब कंपाउंड हम लोग के ब्लैक कलर या उसमें रहता है, ताकि वो सनलाइट से उस पर इफेक्ट ना पड़े. ठीक है, नाउ डिकम्पोज ना हो पाए. तो यहां तक आप लोगों को क्लियर है. अभी हम लोगों का कहां तक कंप्लीट हुआ है? ओनली वी हैव कंप्लीटेड डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ कम टू द थर्ड रिएक्शन, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, वर्ड से देखो,
उसको समझने की कोशिश करो। डिस्प्लेस मीन्स कोई एक चीज, कोई एक एलिमेंट, एनी ऑफ द एलिमेंट रिप्लेसेस, ठीक है, या डिस्प्लेस इट्स पोजीशन। डिस्प्लेस अपने पोजीशन को वो कहीं और कर ले रहा है, ठीक है। तो that type of reaction in which one of the element replaces other elements, okay, are you getting? In which one of the element replaces its position, replaces its original position, and this type of reaction is called as displacement reaction, ठीक है, also called as single displacement, ठीक है। अभी single displacement के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। single displacement reaction, and single displacement reaction is our example ले लो, Zn when zinc combines with the zinc combines with the CuSO4, zinc combines with the CuSO4, it gives, देखो यहाँ पे it gives ZnSO4 and copper will release। कहाँ से रिलीज कर रहा है? कॉपर is releasing from its component। जिंक जो है इस कॉपर को क्या कर दे रहा है? रिप्लेस कर दे रहा है। आर यू गेटिंग? इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस कर दे रहा है, वहां पे जिंक जाकर अटैच हो जा रहा है। In the same way, magnesium when combines with the copper sulfate solution, ये magnesium it replaces the position of copper and itself attaches to the sulfate and it is giving magnesium sulfate and copper release out. In the third reaction, aluminium and copper sulfate when react, it gives aluminium sulfate and copper। ये अलग हो जा रहा है। Why these reactions, why these steps are occurring? ये हो क्यों रहा है? Actually, आप लोगों ने you all have studied in class 8 the reactivity series। रिएक्टिविटी सीरीज याद है? अगर रिएक्टिविटी सीरीज नहीं याद है तो ये समझ में नहीं आएगा कि क्यों रिप्लेस कर रहा है, या कुछ रिएक्शन इसी के बेसिस पे, बहुत सारे रिएक्शन इसी के बेसिस पे काम करते हैं कि दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। देखो रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद हो तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या था? इन 8th क्लास एलिमेंट देखें तो अभी तो लोअर क्लासेस, हायर क्लासेस में और हम लोग के और भी एलिमेंट्स मिलेंगे, एक लंबी चौड़ी लिथियम भी उसमें मिलेगा हम लोगों को, बट इन योर 9th क्लास इतना सफिशिएंट याद रखो। सो द एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज इज योर के, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, H एंड Cu, Hg, Ag, Au। ये है ओवरऑल रिएक्टिविटी सीरीज। एक्चुअली रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स आर प्रेजेंट। इट इज a series of metals in which they are arranged according to their decreasing order of their reactivity or activity। उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बेसिस पे दे आर अरेंज, एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर यू, क्योंकि हायर क्लासेस में और भी एलिमेंट्स इसमें ऐड है, बट फॉर योर क्लास ये सफिशिएंट है। के, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Au। ठीक है, अब Pt भी है, वैसे और है यहाँ पे, इसके ऊपर भी एलिमेंट्स बीच में बहुत सारे हैं, बट फॉर योर क्लासेस इट इज सफिशिएंट। दिस वन इज योर रिएक्टिविटी सीरीज। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज की मीनिंग क्या है, और ये हाइड्रोजन को मार्क कर दे रहे हैं, ठीक है, अभी बताएंगे कि हाइड्रोजन मार्क करने का क्या मतलब है। जस्ट हैव अ लुक कि ये ओवरऑल दिस इज योर रिएक्टिविटी सीरीज, और इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो द एलिमेंट प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट दैट इज वेरी मच रिएक्टिव, और जो जिस एलिमेंट से ऊपर प्रेजेंट है दैट एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव देन देयर लोअर वन, ठीक है। जरा देखो, इट मींस सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम। सोडियम जो है वो कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव है, एंड कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम। नाउ, और इस रिएक्टिव सीरीज में मोस्टली होता क्या है कि जो मेन एलिमेंट्स हैं, जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं, दे हैव द कैपेसिटी टू रिप्लेस इट्स लोअर एलिमेंट्स, और ये यहां पर सेम सिचुएशन फॉलो हो रही है। जस्ट लुक, Zn plus CuSO4,
Zn is present here, ये Zn है, Zn ये ज्यादा रिएक्टिव है, और उसके नीचे कहाँ है कॉपर, कहाँ है कॉपर, ये है. It means Zn has the capacity to replace the copper, और वही हो रहा है, Zn कॉपर को रिप्लेस करा के ZnSO4 बना दे रहा है. मैग्नीशियम प्लस CuSO4, मैग्नीशियम कहाँ है, यहां पर है, और मैग्नीशियम कॉपर को रिप्लेस कर दे रहा है क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन द मैग्नीशियम, और कंपाउंड हम लोग का बन जा रहा है मैग्नीशियम सल्फेट. इन द सेम वे एल्युमिनियम प्लस CuSO4, एल्युमिनियम यहां पर है एंड कॉपर इज हियर, और एल्युमिनियम रिएक्ट करा के क्या हो रहा है, कॉपर को रिप्लेस कर दे रहा है. तो Al2SO4 होल थ्राइस दैट इज एल्युमिनियम सल्फेट, और उसके साथ साथ कॉपर क्या हो जा रहा है, रिलीज हो रहा है. ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि रिएक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स कहां पर प्रेजेंट है, एंड द एलिमेंट प्रेजेंट इन द हायर ऑर्डर हैव द कैपेसिटी, इट हैज द टेंडेंसी टू रिप्लेस द लोअर मेटल्स. ओके, क्लियर हो गया यहां तक. नाउ हाइड्रोजन को जो मार्क किया है मैंने, ठीक है, हाइड्रोजन को जो मार्क किया है, इसमें देखो द मेटल्स, ठीक है, मेटल्स जो हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हाइड्रोजन से जो ऊपर प्रेजेंट है, अगर इफ दे विल रिएक्ट विथ एनी एसिड कंपाउंड, देन एनी एसिडिक कंपाउंड, देन इट विल रिलीज हाइड्रोजन गैस. वो उस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस को ही रिलीज करेगा. देखो Fe प्लस H2SO4 वो रिप्लेस करा के FeSO4 H2 को रिलीज कर दिया, बन गया ये मेरा FeSO4, ठीक है. Mg प्लस 2HCl, MgCl2 और H2 को क्या कर दिया, गैस के फॉर्म में रिलीज कर दिया. ZnH2SO4, ZnSO4 और H2 को रिलीज कर दिया. ऑल दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट जस्ट अबव द हाइड्रोजन. देखो Fe जो है वो भी प्रेजेंट है हाइड्रोजन के ऊपर, मैग्नीशियम इज ऑल्सो प्रेजेंट अबव द हाइड्रोजन, एंड जिंक इज ऑल्सो प्रेजेंट above the hydrogen. It means all these metals have the tendency to release the hydrogen gas when it combines with the acidic compound. ठीक है, क्लियर हुआ. Now come to the double displacement. Displacement में पढ़ लिया है कि एक एलिमेंट के पास कैपेसिटी है कि वो रिप्लेस कर जाए. इन द सेम वे डबल डिस्प्लेसमेंट में इन बोथ द रिएक्टेंट्स, when two reactants are combining and from two reactants both the radicals when replaces its position, then this type of reaction is called as double displacement reaction. देखो अगर suppose if we have a reactant that is XY, अगर कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्टेंट है XY and another reactant, और बेस का pH लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, और ऑलरेडी वी नो दैट कि वाटर का pH लेवल क्या होता है, 7 होता है, दैट इज योर न्यूट्रल. तो व्हेन एसिड कंबाइंड, एसिड की जो कि पीएच लेवल बहुत ही कम होती है और बेस की पीएच लेवल बहुत ज्यादा होती है, व्हेन बोथ दे कंबाइंड दे आर न्यूट्रलाइजेस, ठीक है, उसकी पीएच लेवल कम होती चली जाती है, दैट्स व्हाई, और न्यूट्रल होती चली जाती है, एक बीच लेवल में आ रही है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन एसिड कंबाइंड विद द बेस. और एसिड, व्हेन एसिड, suppose we have a reactant that is your XY and another reactant that is your AB, and these components when combined to form a single component that is called as your radical. It means X is your radical and Y is your another radical. Definitely they are just like this, X plus and Y minus and then A plus B minus. Then the positive radical will attach with the negative part, X plus B minus and then A plus Y minus. This, when the radical replaces its position, then this type of reaction, both the radicals are replacing their position, and that's why it is called as double displacement reaction. And again we have to study two types of reaction in the double displacement reaction. First one is your precipitation reaction and second one is your neutralization reaction. It means in double displacement reaction mostly the precipitation occurs. Okay, so suppose AgNO3, that is your silver nitrate, when combined with the sodium chloride, AgNO3 when combined with the sodium chloride, it will give a precipitate of silver chloride. White color का ये precipitate मिलेगा and NaNO3 will be in your solution form. Second example is your calcium chloride when combined with the sodium carbonate, it will give sodium chloride and calcium carbonate in the precipitate form. Next one is our neutralization reaction. Neutralization reaction,
जस्ट देखो दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में रिप्लेसमेंट हो रहा है. Ag is replacing with Ag is combining with the chlorine and NO3 is combining with the Na, sodium. ठीक है, that's why this reaction is called as double displacement reaction. And second one is our neutralization reaction. Neutralization reaction, here the acid is combining with the base. और already we know that कि acid की जो acid का जो pH level होता है वो बहुत कम होता है. So student, after the completion of these reaction up to 4 double displacement reaction, now we are going to start oxidation reaction. Okay, oxidation reaction is that type of reaction in which there is an addition of oxygen. Either there is an addition of oxygen or the removal. Just note it down. Either addition of oxygen, removal of hydrogen, or addition of any electronegative element. That also we called it that oxidation is occurring. And another part is that removal of any electropositive element, removal of electrons. Okay, removal of electrons. It means in an oxidation either there is an addition of oxygen. Just have a look. In this reaction, oxygen is added with copper, is reacted with the oxygen, it gives cupric oxide. Next one is your iron. Iron will combine with the sulfur, it gives ferrous sulfide. Or if you have the knowledge of the periodic table, then you must know. आप लोग को याद होगा कि in the last class or in the periodic table already I told you that sulfur is your electronegative element. It means अगर oxygen add हो रहा है, then it is also called oxidation. If the addition of any electronegative element, then also it is called as oxidation is occurring in that reaction. Next one, chlorine is also your electronegative element. When iron is combined with the chlorine, it gives ferric chloride. Now come to the next reaction. What is reduction? Reduction is just opposite of the oxidation. How can we say that? अगर यहाँ पर addition of oxygen हो रहा है, तो here we will say that addition of, ये तो इस part का है, ठीक है? Here we will say that addition of hydrogen. Then it is called as reduction. Addition of hydrogen, then addition of electron. Okay, then removal of oxygen or the removal of electronegative element. इन चारों के कंसेप्ट में हम लोग we just define the oxidation and reduction. इन चारों के कंसेप्ट में हम लोग डिफाइन करते हैं either oxidation or reduction. Addition of hydrogen, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है Cl2 plus H2, it is giving HCl. Cl2 plus H2S, again HCl and sulfur will remove out. ठीक है, ये हो गया reduction reaction. And what is redox reaction? Redox reaction is that type of reaction in which the oxidation and reduction, both the reactions are occurring simultaneously. दोनों एक ही reactions में हो रही हैं, एक के बाद एक साथ में उसी में. Then this type of reaction is called as redox reaction. और ये जो redox का RED है, it comes from the reduction. It comes from the, ये पूरा पार्ट जो है, it comes from the reduction and जो ये पार्ट है, ये it comes from the oxidation. और दोनों को combine करके when we combine both the part, then we get redox reaction. Okay. Now just have a look in this reaction. H2S combined with the chlorine, then it is giving to HCl and sulfur. In the case of oxidation, we are saying that either it is addition of oxygen
और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इन बोथ द केसेस वी आर सेइंग दैट देयर इज एन ऑक्सीडेशन, देयर इज एन ऑक्सीडेशन ऑकरिंग। यहाँ पे देखो, यहाँ से नहीं डिसाइड करो कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, यू हैव टू डिसाइड विद द प्रोडक्ट, ठीक है। H2S अपने आप में रिएक्टेंट है, ठीक है, H2S में रिएक्टेंट है। यहाँ पे जब हम लोग का प्रोडक्ट बना सल्फर, दैट इज योर प्रोडक्ट, इसी से तो आया ना, क्लोरीन है, हियर इट इज सल्फर। तो सल्फर में इन योर एंड प्रोडक्ट दैट इज योर सल्फर, इट मींस द हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव कर गया। और हाइड्रोजन इज रिमूविंग, कहाँ पर देखो हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इट इज ऑक्सीडेशन, ये देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है आपको। ओके, नाउ कम टू द क्लोरीन। ऑलरेडी इन द रिएक्टेड कंडीशन क्लोरीन क्या था, अकेला था, इट वाज ऑल एलोन, ठीक है, अकेला था। बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, नाउ इन दिस रिएक्शन क्लोरीन इज कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोजन फ्लोराइड, इट मींस इन द क्लोरीन before the reaction chlorine was alone, but after the completion of the reaction hydrogen is added, hydrogen is added in the chlorine, that's why addition of hydrogen is called as addition. This one, this part, addition of hydrogen is your reduction, that's why in this part reduction is occurring, and both the oxidation and reduction is occurring in the same reaction, that's why it is called as redox reaction. Next reaction, that is polymerization reaction. In polymerization, आज की जो polymerization जो ये reaction है, it is very much applicable in our industrial, in industries. Okay, industrial way में बहुत ज़्यादा इसको अप्लाई किया जा रहा है polymerization को। और in polymerization reaction, it is very much applied in our polythene industry, प्लास्टिक इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, ठीक है, एंड सिंथेटिक फाइबर्स जितने भी बन रहे हैं, सिंथेटिक रोप्स है, सिंथेटिक फाइबर, इवन सिंथेटिक क्लॉथ जितनी भी बन रही है, सबके सब पॉलीमराइजेशन का एप्लीकेशन है, ठीक है। लेदर की इंडस्ट्री, मतलब ये पॉलीमराइजेशन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि ये सारी की सारी इंडस्ट्रियल लेवल पे काम करती है, ये जान लो, ठीक है। पॉलीमराइजेशन, इन पॉलीमराइजेशन एक्चुअली होता क्या, स्मॉल जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, स्मॉल यूनिट्स, उसको हम ढेर सारे यूनिट्स में कंबाइन करके वी फॉर्म अ लार्जर यूनिट, ठीक है, वी फॉर्म अ लार्जर यूनिट। जस्ट एक एग्जाम्पल जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा फैमिलियर है उस चीज़ से, दैट इज आवर पॉलीथीन, ठीक है। पॉलीथीन डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, कई बार बैन किया गया, बट स्टिल आफ्टर सम टाइम इट इज अगेन यूज, इट इज अगेन रीयूज, या फिर से ये दोबारा आ जाता है, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में मेनली इथीन इज एन कंपोनेंट, या इथीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। एंड द फॉर्मूला ऑफ इथीन इज योर C2H4, C2H4 इज योर केमिकल फॉर्मूला, C2H4 is your chemical formula, and this is your structure formula. This is present like this. C is present with the, C is attached with the another carbon. This carbon is attached with the another carbon with a double bond. And here we have two hydrogen combined in the form of single bond. और यहाँ पे भी जो दो hydrogen है, it is attached in the form of single bond. And when it is heated in the presence of catalyst, और catalyst पता ही है कि catalyst is that component which just increases the reaction। और catalyst जो है, catalyst के presence में अगर इथीन molecule को heat किया गया, then we get a compound, we get an element that is your polythene, जो हमें नजर आने लगता है। इथीन molecule के जितने भी number of units हम लेंगे, उतने ही units हमें मिलेगा। Suppose we are getting a 10 unit, suppose we are getting a 10 unit of ethene, then we get 10 unit of polythene। सपोज वी आर, मतलब एक चेन बनती चली जा रही है, ये जो सिंबल है ना, ये चेन का सिंबल है। यहाँ से फिर एक अटैच हो जाएगा C2H2, यहाँ पे हम लोग का कार्बन प्रेजेंट है बेटा, दिस वन इज ये बॉन्ड जो शो कर रहा है, इट मींस इट इज कार्बन, और ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जा रहा है सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ से एक और चेन बनती है, यहाँ से एक और कार्बन बन जाएगी, इस कार्बन से फिर ये कार्बन, यहाँ से हाइड्रोजन अटैच है, दिस वन, और एक किसी भी लंबी सी चेन चलती चली जाएगी।
एंड दैट इज कॉल्ड एज पॉलीथीन। ठीक है, क्योंकि इथीन का अगर 100 यूनिट यूज करेंगे तो 100 चेन बनेगी और वो बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस जितना हमें नीड होगी उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूनिट्स ज्वाइन करेंगे। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एंड आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन इज isomerization reaction is also a very simple reaction. Actually, any component, a component doesn't changes its chemical formula. उसमें chemical formula या number of elements में कोई change नहीं आता. Only it change its position, and because they change its position, it changes its physical property also. Just have a look. मतलब सिर्फ शेप में सिर्फ उसकी कहाँ चेंज आ रहा है, सिर्फ उसकी शेप में चेंज आ रहा है, मीन्स अरेंजमेंट में चेंज आ रहा है। अगर ये एमोनिया, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन एंड वी हैव 2 नाइट्रोजन हियर, यहाँ पे भी देखो नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, वी हैव 2 नाइट्रोजन हियर ओनली, अगेन वी हैव 4 हाइड्रोजन हियर, अगेन वी हैव 4 हाइड्रोजन। मतलब केमिकल फॉर्मूला दोनों में सेम ही है, NH4CnO इसका भी बनेगा और N2H4CnO ammonium cyanide. ठीक है, ammonium cyanide when it is heated they give a compound that is your urea. This one is your urea. और urea 2 नाइट्रोजन यहाँ पर भी है, we have 4 हाइड्रोजन and again we have 1 carbon atom and 1 oxygen atom. 1 carbon atom and we have 2 nitrogen. Here we have 2 nitrogen. Now overall the same chemical formula. Isomerization reaction, the chemical formula is same, but the structural formula is changed. Only the arrangement is changed. That's why this type of reaction is called an isomerization reaction. Now I think we have completed our chapter. And और आई थिंक आई हैव मेक माई सेल्फ क्लियर, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर है बेटा। और ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, फ्रैंकली आई एम स्पीकिंग, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस इसमें आए हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं। आज हमें पता चला है कि यूट्यूब वीडियो को बनाना बहुत ज़्यादा मतलब समझ लो कि ये अब तक का मेरा सबसे खराब एक्सपीरियंस रहा है इस वीडियो में बनाने में बेटा। एक पूरी की पूरी वीडियो मेरी डिलीट हो चुकी है, पूरी वीडियो डिलीट हो चुकी है। नाउ का अब समझ में आ गया हमें कि कितनी प्रॉब्लम होती है। नाउ आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर और चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। और आई एम गिविंग यू सम होमवर्क, ठीक है, this chapter is related. I am giving you some homework and you have to do. You have to complete all the homework. Better try to cooperate. If teacher is cooperating with you, if teacher is trying to best, if teacher is doing its best effort, then you have to cooperate with us also, beta. So that's why घर में रहो, stay safe, stay home, and goodbye.